Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about the different terminologies which we mostly use in repertorization of homeopathic cases. A few days ago we attended Schwabe homeopathic seminar at Islamabad, where the CEO of the Schwabe Group Hamid organization that is based at Karachi, Dr. Inamul Haq, Captain retired, he talked about the different terminologies and said if you are taking the homeopathic case, and if you do not know the terminologies which are mostly used in taking the mind symptom, then it is very difficult for a prescriber or a homeopathic doctor to repertorize the case properly. He, while illustrating his opinion, he talked about the different terminologies like the depression, anxiety, repression, delusion, and illusion. So first of all, I would like to differentiate these different terminologies for you people, and then I will give you the example, and then I will also explain the different remedies which may be prescribed for all these terminologies, because there are so many medicines which are exclusively reserved for these terminologies. For example, you say hallucination and illusion. These are the two terminologies: hallucination and illusion. First, I will explain illusion. What is illusion? Illusion is by using your sensory organs: eyes, आँख, नाक, taste, zuban, ye touch. By using all these sensory organs, if you have been deceived by using these sensory organs, then it is called illusion. अगर सेंसरी ऑर्गन्स के धोखे की वजह से अगर आपको एक चीज गलत नजर आ रही है, जो है नजर आ रही है लेकिन हकीकत में नहीं है, वो इल्यूजन है. मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपकी आंख ने देखा कि सड़क के वो सामने शदीद धूप है, तो सड़क के ऊपर पानी चल रहा है. सड़क के ऊपर पानी चल रहा है. 2 किलोमीटर आगे आपने देखा या 1 किलोमीटर आगे आपने देखा कि पानी चल रहा है सड़क के ऊपर. वाटर इज प्रेजेंट in the desert. If you are traveling in the desert and your eye saw the water running on the ground in the desert and you are looking for the water for drinking, then you are moving forward to for drinking that water. But when you have reached that place, you saw there is no water. So what have been deceived? Your eye, vision. You have used your sensory organ, eye. आपने अपनी आंख का इस्तेमाल किया, बट आपकी आंख ने आपको धोखा दिया, और वो जो सिराब नजर आ रहा था पानी का, वो आपको धोखा दे दिया. आपकी आंख, विजन ने धोखा दिया, आपके सेंसरी ऑर्गन ने धोखा दिया. क्या हुआ है? अच्छा चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ. और चुप है. ये मेरा नवाज है, प्योर जर्मनी में पैदा हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है. अच्छा जी, अब इल्यूजन आपको समझ में आ गया कि इल्यूजन क्या है? आपकी आंख, सेंसरी ऑर्गन्स का धोखा, आपके कान सुनने का धोखा, आपके टेस्ट चखने का धोखा, यानी ऑर्गन इन्वॉल्व है
लेकिन जब जाके देखते हैं तो वो हकीकत नहीं होती। तो ये जो मोस्ट ऑफ द जगलर्स आर द मैजिशियन, दे आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ इल्यूजन। वो आपकी आंख को धोखा देते हैं। मसलन एक डब्बे के अंदर उसने डब्बा आपको दिखाया खाली, और डब्बे को दिखाने के बाद उसने खाली डब्बे में से कबूतर निकाल दिया। दैट इज इल्यूजन। तो मैजिक इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन। अच्छा, इस तरह भी करते हैं। एक अमेरिका में कोई है, वो क्या नाम है, मैजिशियन है, स्ट्रीट मैजिशियन है। वो क्या करता है कि वो जो उनका मुजस्समा आज़ादी है, सारे बंदे 200-400 बंदा सामने बैठा होता है, वो उनकी आंख के सामने उस मुजस्समा आज़ादी को गायब कर देता है। दैट इज इल्यूजन। आप इसको यूं समझ लें कि पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान है, तो मीनारे यहाँ पे 200-400 बंदा सामने बैठा है, सामने मीनारे के साथ नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो एक टेक्निक के जरिए उस मीनारे पाकिस्तान को 200 बंदों के सामने से गायब कर देता। दैट इज इल्यूजन। अब आते हैं हेलुसिनेशन की तरफ। हेलुसिनेशन इज द प्रोसेस और द टेक्निक आर इन विच आर द एक्सपीरियंस in which the sensory organs are not involved. Eye, taste, hearing and nose, all these sensory organs and touch are not involved, but he is feeling the same thing. Hallucination क्या है कि वो उसी तरह कुछ चीज देख रहा है, लेकिन उसमें सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो कहता है कि हेलुसिनेशन में कहते हैं कि जी ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई बंदा है, और सारे बंदे जो दूर में बैठे हैं वो कहते हैं यहाँ रहते थे, कोई बंदा कोई नहीं। वो कहते नहीं मेरे अब्बा जी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बात भी करके आपको बता सकता। दैट इज हेलुसिनेशन इन विच द सेंसरी ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व एंड द पेशेंट इज परसीविंग समथिंग विदाउट इन्वॉल्विंग द सेंसरी ऑर्गन्स। वही चीज सोच रहा है। अच्छा जी, दादा दरबार के पास मैंने मीनारे पाकिस्तान को देखा, दादा दरबार के पास मैंने मीनारे पाकिस्तान देखा, तो दादा दरबार के पास तो मीनारे पाकिस्तान नहीं है, उसके सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो सोच रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। अच्छा, डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन ये है कि ना उसका सेंसरी ऑर्गन से ताल्लुक है, ना उसको भी इन्वॉल्व कर रहा है और ना इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। डिल्यूजन ये है कि फॉल्स परसेप्शन, जहन की झूठी इख्तरा। वो समझता है कि मैं अमेरिका का सदर हूं। डिल्यूजन, मैं अमेरिका का सदर बन गया हूं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान बन गया हूं, मैं जनाब फला जमात का सरबराह बन गया हूं, और वो आपसे उस टोन में बात कर रहा है। आपके 5-10 दोस्त बैठे हुए हैं और वो आपसे कह रहा है, ओ यार मैं जो है ना बस मैंने अभी वजीर आजम बन गया हूं, मैंने जाके ना ये काम कर देंगे, और आप लोग सारे हंस रहे हैं उस बात। फॉल्स परसेप्शन, डिल्यूजन। तो आपको 3 टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, डिल्यूजन, फॉल्स परसेप्शन, हेलुसिनेशन विदाउट यूजिंग द सेंसरी ऑर्गन बट फीलिंग समथिंग और सीइंग समथिंग, और इल्यूजन बाय यूजिंग द सेंसरी ऑर्गन बट सीइंग सम फॉल्स थिंग। ये होगी बात। अब आते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ। एंजाइटी इज एक्चुअली इसमें यहां पे 3 टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगा, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और ये 3 बातें डॉक्टर इनाम साहब ने वहां पर भी बात की थी, अंग्रेजी में की थी, समझाने के लिए, क्योंकि आपकी ज्यादातर जो रिपोर्टरी है वो तो बाहर से आई हुई है ना, वो तो अंग्रेजी में थी। तो ये उनका मौकफ है कि भाई आप केस अगर लेते हैं, होम्योपैथिक में केस लेते हैं और मेंटल सिम्टम ले रहे हैं उसमें साथ साथ, तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती होगी और उनका एग्जैक्ट डिफरेंस आता होगा, तो आप मरीज की बात सुनकर ज्यादा बेहतर रूबरी की तलाश कर सकते हैं।
That was the point he wanted to convey, that if you know the difference of depression, anxiety and depression, exactly what is the difference between all these terminologies, then you will be able to translate or convert the language of the patient into the language of the repertory. अगर आप मरीज की बात को, इन टर्मिनोलॉजी को सुनते होंगे, समझते होंगे, तो मरीज की बातों को आप होम्योपैथी की लैंग्वेज रिपर्टरी में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा. मसलन व्हाट इज रिप्रेशन? रिप्रेशन इज एक्चुअली दी, वो कहते हैं कि एक इट्स एग्रेशन इफ समबडी इज नॉट interested or opposing your opinion. You want to do something on some conflict, you want to do something, but somebody is not accepting that opinion, and you are helplessly become depressed. यार है मेरी गल नहीं मनदा पिया. And if I have the power to convey my opinion so that they must act upon and follow my advice, then I will do it. यानी अगर उसमें ताकत होती, एक शख्स में उसमें ताकत होती, तो वो अपनी ताकत से अपनी ओपिनियन को फोर्स करके मनवा लेता. लेकिन उसमें ताकत नहीं है, वो अपनी बात को नहीं मनवा पा रहा, तो फिर हेल्पलेसली वो परेशान हो जाता है. यार मैंने क्यों नहीं ये काम किया, ये क्यों नहीं मैं कर पा रहा. दैट इज रिप्रेशन. तो रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन इज एक्चुअली लीड्स टू एंजाइटी. रिप्रेशन की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है. वो काम जो आप करना चाह रहे हैं और बामरे मजबूरी नहीं कर पा रहे, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास ज़हन नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, आप वो करना नहीं चाह रहे, तो बॉडी जो है वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स पैदा करती है और इंसान जो है रिप्रेशन में चला जाता है, एग्रेसिव एटीट्यूड में चला जाता है और वो एंजाइटी स्टेट में चला जाएगा आगे. तो एंजाइटी क्या है? अब इसको समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा लफ्ज एक यूज होता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. इसका सिंपल जवाब ये है, पूरी दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं समझाएगा, मैं आपको समझा दूं दो लफ्ज. एंजाइटी इज एक्चुअली फियर ऑफ द फ्यूचर. मुस्तकबिल का खौफ, किसी बात का मुस्तकबिल का खौफ इज एंजाइटी. फियर ऑफ फ्यूचर. डिप्रेशन क्या है? फियर ऑफ पास्ट इवेंट. फियर ऑफ पास्ट इवेंट, जो माजी में चला गया है उसकी वजह से परेशानी या खौफ, वो है डिप्रेशन. मुस्तकबिल में होने वाली परेशानी जिसके बारे में इंसान सोच रहा है, वो है एंजाइटी. और डिप्रेशन क्या है? कि डिप्रेशन ये है कि कोई शख्स बाबरे मजबूर होकर हेल्पलेसली जब वो ये काम नहीं कर पा रहा कोई, और उसके अंदर जो एग्रेशन पैदा हो रहा है उसको मुकम्मल करने के लिए, और वो कर नहीं पा रहा है, दैट इज डिप्रेशन. और डिप्रेशन एंजाइटी की पहली स्टेज डिप्रेशन है, यानी डिप्रेशन से एंजाइटी में बंदा जाएगा. अच्छा, अब अगर आपको बात समझ में आ गई कि एंजाइटी फियर ऑफ द फ्यूचर और डिप्रेशन फियर ऑफ द पास्ट. अब मैं आपको बताता हूँ. मसलन मैं कहता हूँ जी यार मैंने ना BHMS का एग्जाम देना है, मैं BHMS के एग्जाम में काफी दफा फेल हुआ, काफी दफा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको सप्ली में क्लियर कर लिया. फिर एनुअल में मैं जाके इस तरह पेपर देता था कि 1 दे दिया, तीसरा दे दिया और 5वां दे दिया. उसके बाद मैंने सप्ली में जाके दूसरा दे दिया और चौथा दे दिया. अब मुझे ये मैंने पेपर दिए, फर्ज किया मैं पेपर देने जा रहा हूँ BHMS का, तो मुझे खौफ है, परेशानी है, यार मैं फेल ना हो जाऊँ, यार मैं फेल होऊंगा तो फिर 1 साल ज़ाया हो जाएगा, यार साल ज़ाया हो जाएगा, यार मुझे पढ़ना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा, मैं फेल ना हो जाऊँ, यार मैं फेल ना हो जाऊँ. ये मुस्तकबिल का खौफ है कि मैं फेल ना हो जाऊं. दैट इज एंजाइटी. यू हैव ए फियर ऑफ द फ्यूचर. I may not be failed in my exam which I am going to appear in the BHMS exam due to any reason. And if
आई हैव गॉन थ्रू द एग्जाम, अगर मैं पास हो गया हूं तो आई एम हैप्पी. बट इफ द सेम थिंग इज हैपेंड व्हाट आई एम थिंकिंग इन द पास्ट एंड नाउ आई हैव फेल्ड इन माई एग्जाम एंड आई एम डिप्रेस्ड, देन इट इज डिप्रेशन. कि जिस तरह मैं सोच रहा था कि मैं फेल ना हो जाऊं, उसी तरह फेल हो गया हूं, और मैं अब जो फेल हो गया हूं उसके बारे में सोच रहा हूं, माजी का हिस्सा बन गया, मैं फेल हो गया हूं, तो फिर दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स माजी का हिस्सा. मगर आप तो कहते हैं यार जो वो फला यार ये हमारी क्रिकेट टीम जा रही है इंडिया से मैच खेलने, तो यार ये हार ना जाए, ये एंग्जाइटी है, हार ना जाए, एंग्जाइटी. और उसी तरह वो हार गए, और हारने के बाद आप गमगीन है, परेशान है, गमगीन है, सैड है, डिप्रेस्ड है हारने के बाद. अब वो माजी का हिस्सा है, 6 महीने हो गए हैं उसको हारे हुए, दैट इज डिप्रेशन. अच्छा चलें एक और एग्जाम्पल देते हैं. खुदा न खास्ता किसी का कोई वालिद या वालदा वो बीमार है, तो उसको एंग्जाइटी है कि यार ये अब फोत ना हो जाए, ये एंग्जाइटी है फोत ना हो जाए. मुस्तकबिल में अभी फोत नहीं हुए, लेकिन वो सोच रहा है कि फोत ना हो जाए, और अगर ये फोत हो गए तो मेरा क्या बनेगा, मेरे घर का निजाम कैसे चलेगा, वो एंग्जाइटी है. लेकिन वो उसी तरह फोत हो गए हैं जिस तरह वो सोच रहा था, उसी तरह सोच रहा है और फोत हो गए हैं, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे वालिद साहब फोत हो गए, अब मेरा क्या बनेगा, मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं किस तरह मकान में रहूंगा, मेरा तो मकान किराए पे है, मेरे पास तो अपना मकान कोई नहीं, वालिद साहब पहले उन्होंने लेके दिया हुआ था, अब वो फोत हो गए, अब कौन किराया देगा. अब उसी तरह हो गया, तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला गया. यानी कि माजी के बारे में सोच रहा है, वालिद साहब को फोत हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो गमगीन है, परेशान है, खौफ में मुब्तला है, लेकिन माजी के किसी इवेंट के ऊपर परेशान है. दैट इज डिप्रेशन. अब इतनी तफसील से मैंने बात समझा दी है, मेरे ख्याल इसके बाद समझाने की जरूरत नहीं है. डिप्रेशन मीन्स फियर एंड सैडनेस ऑफ द पास्ट इवेंट. एंग्जाइटी मीन्स फियर एंड सैडनेस अबाउट द फ्यूचर इवेंट. एंड डिप्रेशन मीन्स an aggression which we mostly act helplessly that leads to anxiety. ऐसा काम जो हम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, और वो नहीं कर पाने की वजह से जो हम परेशानी में मुब्तला हैं, दैट इज डिप्रेशन. अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की तरफ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इनकी कौन कौन सी. तो ये भी एक सवाल भी हुआ था कि भाई ये तो ना एंग्जाइटी डिप्रेशन की सारी एक ही दवाइयाँ होती हैं. इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप किसी रेपर्टरी को यूज करते हैं तो एक ही रेपर्टरी में इन अलामात को तलाश करना. ये नहीं होगा कि आपने मर्फी में आपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी तलाश कर ली, उसके बाद आपने रिप्रेशन जो है वो बोरिक में तलाश कर लिया, और डिल्यूजन और इल्यूजन जो है आपने बोनिंग हासिल में तलाश कर लिया. नहीं, इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि जो राइटर है अगर उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का डिफरेंस का पता है तो वो अलग-अलग दवाई मेंशन करेगा. ठीक है जी, वो अलग-अलग मेंशन करेगा. और अगर आप गलती से कंप्यूटर पे रेपर्टाइज करके जहां जहां से डिप्रेशन और इल्यूजन और हेलुसिनेशन निकालते जाएंगे, फिर आप कभी भी सही डिफरेंस में पहुंच नहीं सकते. एक बात तो ये होगी. तो अब देखें, मैं आपको समझाता हूं कि कार्सिनोसिनम एक बहुत बड़ी दवाई है, पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, होम्योपैथी की पॉलीक्रस्ट रेमेडी है. इसमें आप देखें कि डिप्रेशन कार्सिनोसिनम में डिप्रेशन होता है. माजी यानी गुजरे हुए किसी हादसे के बारे में इंसान का परेशान होना, डिप्रेशन. गुजरे हुए हादसे के बारे में इंसान का परेशान होना, डिप्रेशन. तो ये कार्सिनोसिनम में है. लेकिन एंग्जाइटी नहीं है. कार्सिनोसिनम में एंग्जाइटी नहीं है. मुस्तकबिल के किसी इवेंट के बारे में परेशान होना नहीं है. मसलन
एक बंदा है वो कहता है मेरी अम्मा बहुत ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ मैं BHM में फेल ना हो जाऊं, तो ये एंजाइटी है, ये कार्सिनोसिनम में नहीं है। अब क्लियर होगी बात कि अगर किसी बंदे को किसी मरीज के बारे में पता हो कि डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, तो वो प्रॉपरली दवाई तलाश करने में और रूबरिक बनाने में उसको आसानी हो जाएगी। ये इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, हर प्रोग्राम जो होता है उसमें कोई ना कोई चीज आप जाके सीखते हैं, वहां हमने ये बात सीखी है जो आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब आप देखें कार्सिनोसिनम में रिप्रेशन बहुत हाई दर्जे का होता है। यानी किसी मरीज में अगर रिप्रेशन है जो कि अभी एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, रिप्रेशन है, इब्तदाई स्टेज है, तो फिर वो कार्सिनोसिनम हो सकता है। मजे की बात है कि एंजाइटी नहीं है उसमें, यानी रिप्रेशन के बाद डायरेक्ट मरीज डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी में नहीं जाएगा। तो अगर वो डायरेक्ट डिप्रेशन में चला गया है तो फिर वो कार्सिनोसिनम का मरीज है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, फिर इसी तरह आ जाते हैं कार्सिनोसिनम में डिल्यूजन है लेकिन इल्यूजन नहीं। कार्सिनोसिनम में डिल्यूजन है, इल्यूजन नहीं है। अब आए थे एक और दवाई की तरफ, एसाफोटिडा। इसके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है। अगर कोई बंदा एंजाइटी स्टेट में है, यानी कि वो कहता है मैं इम्तिहान में फेल ना हो जाऊं, उसकी दवाई एसाफोटिडा नहीं। लेकिन अगर फेल हो गया तो फिर उसकी दवाई एसाफोटिडा है। इसी तरह इसके अंदर एसाफोटिडा में रिप्रेशन नहीं है, रिप्रेशन नहीं है, जबकि कार्सिनोसिनम में है। डिल्यूजन ये एसाफोटिडा में बिल्कुल माइन्यूट है, यानी कि सिंगल स्टार, और इल्यूजन डबल स्टार। हाई लेवल की इल्यूजन होती है एसाफोटिडा में। हायोसाइमस, इसके अंदर डिप्रेशन हाई लेवल का है, डिप्रेशन, लेकिन एंजाइटी नहीं है। हायोसाइमस जाके पढ़ लें, डिप्रेशन हाई लेवल का है, एंजाइटी नहीं है, रिप्रेशन भी नहीं है, लेकिन डिल्यूजन तो पता नहीं 100 लेवल का है। हायोसाइमस में डिल्यूजन हाईएस्ट लेवल का है। पूरी होम्योपैथिक दवाई में सबसे बड़ी दवाई डिल्यूजन की हायोसाइमस है, और इल्यूजन भी इसके अंदर मौजूद है। इल्यूजन एंड डिल्यूजन हायोसाइमस में मौजूद है। अब आते हैं स्टैफी की तरफ। माइनर किस्म के इसके अंदर डिप्रेशन होती है, माइनर किस्म के इसके अंदर एंजाइटी होती है स्टैफी के अंदर, लेकिन रिप्रेशन हाई लेवल का है। स्टैफी में रिप्रेशन हाई लेवल का है, डिल्यूजन हाई लेवल का है, और इल्यूजन माइनर किस्म का है। अब आ जाते हैं वो कौन सी दवा है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, रिप्रेशन भी है, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है। विच इज द रेमेडी इन होम्योपैथी दैट covers all these depression, anxiety, repression, delusion, illusion, and whatever the psychosomatic disorders, and that remedy is pulsatilla and like. These are the two remedies which are covering all these terminologies. डिप्रेशन में भी दी जाती है, एंजाइटी में भी दी जाती है, डिप्रेशन में भी दी जाती है, इल्यूजन, डिल्यूजन सब में दी जाती है। ये मैंने बता दी 2 दवाइयां आपको, पल्साटिला और लाइको। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी बात कि अगर आपके पास कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मरीज आता है तो अगर वो औरत है तो पल्साटिला दे दें बगैर सोचे समझे, और बाद में केस को एनालाइज करें सोच के, और अगर वो मर्द है तो लाइको दे। कैसी बड़ी बात बता दिया कि इसके अंदर तमाम जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की टर्मिनोलॉजीज है वो इन दोनों दवाइयों के अंदर मौजूद है। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी। जिंकम फास एक दवाई है, जिंकम फास में डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है। अच्छा, आरम मेट जो है इसके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है। ये जो कह रहे थे ना कि कोई दवाई ऐसी नहीं है, सारी दवाइयां जो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं, आरम मेट नहीं होती। आरम मेट में डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है। जिंकम फास में डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है। उसके बाद ये आप देख लें हेलोनियाज, इसके अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं है।
और फिर इसके बाद आप लेकडेफ्लोरेटम, इसके अंदर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी नहीं है। फिर ऑक्सैलिक एसिड, इसके अंदर डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी है। ऑक्सैलिक एसिड में डिप्रेशन नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड का मरीज डिप्रेशन का मरीज नहीं होता। अगर कोई आपके पास मरीज आ जाता है और वो परेशान है, सैड है, और आपने उसको डायग्नोज किया है कि ये डिप्रेशन का मरीज है, तो फिर उसकी दवाई ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। बेशक बाकी तमाम सिम्टम उसकी कवर कर रही हैं जो आपने उसकी देखी हैं, लेकिन उसकी मेंटल सिम्टम में डिप्रेशन की अगर वो स्टेट में है तो आपने कंफर्म कर लिया कि वो डिप्रेशन का मरीज है, परेशान है अपने पास इवेंट की वजह से, तो फिर भी आप उसको ऑक्सैलिक एसिड नहीं देंगे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इज नॉट कवरिंग द डिप्रेशन स्टेट, इट इज द मेडिसिन फॉर द एंग्जाइटी स्टेट। अब आते हैं बिस्मिथ। बिस्मिथ में भी डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी है और साथ साथ जो है डिल्यूजन भी है, साथ साथ डिल्यूजन भी है और एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन नहीं है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल वैसी दी हैं कि समझाने के लिए दी हैं कि अगर इफ यू नो द terminologies and you know the difference between all these terminologies very well, then you will be able to repertorize the case in excellent manner, because you will be able to convert the language of the patient into the language of the repertory, so that you may find the exact minimum remedy after adding all these symptoms which the patient is suffering from. Then you can find a minimum remedy that is covering all the aspects of the patient, along with the mental state, physical state, location, sensation, modalities. But this can only be happened when you know the terminologies of the psychosomatic disorder, and by taking the good symptom of the mental state, by visualizing and understanding the good state of the mental state. तो ये अगर आपको आता होगा, मेंटल स्टेट को अगर आप मरीज की समझ सकते हैं, तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से रेपटाइज करें। अब वहां पर उन्होंने एक और बात भी की इनाम साहब ने, वो ये कि भाई ठीक है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आती और आपने उसके बावजूद कोई दवाई सिलेक्ट कर ली है और वो मरीज ठीक हो गया, तो दैट इज तुक्का। आपने तुक्के से दवाई तो सिलेक्ट कर ली है, इसमें कोई शक नहीं, और उसको मरीज को आराम भी आ जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट होम्योपैथी। इसका मतलब अगर किसी जगह पर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई और तुक्के में आपने कर लिया, तो कोई ऐसा मरीज आ गया जो आपका बहुत करीबी है और आपका अम्मा अब्बा या चाचा मामा बहुत करीबी है और वो स्टेट के अंदर है, और तुक्के में आपने दवाई गलत सेलेक्ट की हुई है, आप इस चीज को समझ नहीं सकते, ये समझते नहीं है, तुक्के में दवाइयां देते हैं, तो वहां पर अगर फर्ज किया तुक्का नहीं चला, तो फिर आप यू आर ऑल्सो यू आर द कन्विक्टेड पर्सन, you are the convicted person. You should be blamed of that you are unable to prescribe a proper remedy to your real relative, just because you have no idea about the different terminologies and the meaning, exact meaning for which these terminology should be taken while repertorizing the case. ये बात समझ में आपके आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।